নমস্কাৰ সো আজি ক্লাস 11 আমি উৎপাদন ফলন প্রোডাকশন ফাংশন কনসেপ্ট লৈ ডিসকাশন কৰিম লাস্ট ক্লাস লৈকে আমি শর্ট রান যেটো আমাৰ হৰ্ষকালৰ উৎপাদন ফলন সেই কনসেপ্ট লৈ আমি ডিসকাশন কৰিছিলো পৰিৱৰ্তনশীল অনুপাত বিধিৰ অধীনত means law of variable proportions দি পেলাই আমি কনসেপ্ট এক্সপ্লেইন কৰিছিলো তাত আমি তিনটা স্টেজ পাইছিলো ফার্স্ট স্টেজত ইনক্রিজিং ৰিটাৰ্নস টু এ ফ্যাক্টৰ সেকেন্ড স্টেজত ডিমিনিশিং ৰিটাৰ্নস টু এ ফ্যাক্টৰ ফাইনালি থার্ড স্টেজত নেগেটিভ ৰিটাৰ্নস টু এ ফ্যাক্টৰ ক্লিয়াৰ যত আমাৰ আছিলে one factor is variable another factor is fixed clear but in the long run production function means that kind of production function where two factors are changes at the same rate that means দুইটা ফ্যাক্টরে যদি তুমি এক্সাম্পল লোৱা লেবার এন্ড ক্যাপিটাল means শ্রম আর মূলধন দুইটা ফ্যাক্টরে একে হাৰত পৰিৱৰ্তন হ'ব means in the long run situation both factors are variable clear তেতিয়ালে বলা আমি লং রান প্রোডাকশন ফাংশন বা দীর্ঘকালৰ উৎপাদন ফলন কনসেপ্ট এক্সপ্লেইন কৰো ক্লিয়ার Long run production function nothing but that kind of production function where both factors are variable. Clear? Means important concept hoise long run production function of what? Both factors. Clear? What? Both factors are variable. It is important bostu. Both factors are variable and changes. Okay? So changes at the same rate. This is one important. Same what? Same rate. Clear? So দুইটা factors variable hobo aru দুইটাই same rate of change hobo. Clear? Suppose মই এটা production function যদি লও say q is equal function of ln k যদি production or output depends on labor and capital in that situation both factor changes at the same rate if both factor changes at the same rate that means what in that production function we say it is a long run production function clear তেতিয়ালে এই কনসেপ্ট লৈ পেলাই আমি বস্তুটো এনেকে দেখাব পাৰো ক্লিয়াৰ কেনেকে দেখাব পাৰো ধৰি লোৱা সাপোজ তোমাৰ হাতত লেবার আছে আৰু ক্যাপিটাল আছে ক্লিয়াৰ দুইটা ফ্যাক্টৰে ধৰি ললো say lambda time change hobo kiman times lambda time change hobo কোন দুইটা ফ্যাক্টরে lambda time changes hobo clear তেতিয়া হলে দুইটা ফ্যাক্টর যে lambda time change হয় তেতিয়া হলে labor lambda times capital also lambda times clear so in that situation lambda nothing but same rate lambda nothing but same rate means yet labor and capital both are changes at the lambda times clear मैं बोलना चाहता हूँ इसमें दोनों जो फैक्टर है ना लेबर एंड कैपिटल दोनों चेंज हुआ बट कौन सा रेट में चेंज हुआ लैम्डा टाइम्स के हिसाब से चेंज हुआ लैम्डा का वैल्यू तुम 2 पकड़ लो तो 2 टाइम्स रेट में चेंज हुआ क्लियर तो ये अगर कंसेप्ट तुम ले लो मान लो लेबर चेंज हुआ लैम्डा टाइम्स कैपिटल भी चेंज हुआ लैम्डा टाइम्स अगर इन दैट सिचुएशन तुम्हारा जो आउटपुट आएगा ना वो आउटपुट भी लैम्डा टाइम चेंज होगा ना तो इसका मतलब हो जाएगा दिस कॉन्सेप्ट नथिंग बट CRS मीन्स कॉन्स्टेंट रिटर्न्स टू स्केल समहार मात्रार प्रतिदान বুলি কয় দুইটা ফ্যাক্টরে जिमान रेटत चेंज होबो आउटपुटও যদি হিমান रेटत चेंज হয় दिस इज सेड टू बी সমহার মাত্রার प्रतिदान क्लियर আকো যদি ধৰি লোৱা ই ল্যাম্ডা টাইমস ইউ ল্যাম্ডা টাইমস বাট আউটপুট যেটো চেঞ্জ হৈছে হেতু ডিগ্রি টু সোয়া মই ইয়াৰ ডিগ্রি টু 1 ইয়াৰ ডিগ্রি টু 2 ল্যাম্ডা টাইমসতকে বেশি চেঞ্জ হৈছে ই ল্যাম্ডা বাট আউটপুট মোর দেন ল্যাম্ডা ইন দ্যাট সিচুয়েশন এই কনসেপ্ট হবো IRS ক্লিয়ার আকো যদি তুমি লোৱা সে L lambda times capital also lambda times in that situation output changes 0.2 that means একতকে কম so less than lambda times okay means both factor changes lambda times but output increases less than lambda times okay in that situation it is said to be DRS means decreasing returns to scale clear তেতিয়া হলে কনসেপ্ট তুমি আৰু ডিটেইল যদি ভালকে সোয়া
তেতিয়াহ'লে তুমি এনেকা কনসেপ্টটো দেখুৱাব পাৰা এটা এটাকে ওকে তেতিয়াহ'লে আন্ডাৰ লং ৰান আমি তিনিটা কনসেপ্ট পাম সমহাৰ মাত্ৰাৰ প্ৰতিদান ক্ৰমবৰ্ধমান মাত্ৰাৰ প্ৰতিদান এণ্ড what decreasing means ক্ৰমহ্ৰাসমান মাত্ৰাৰ প্ৰতিদান ক্লিয়াৰ তেতিয়াহ'লে প্ৰথম কনসেপ্টটো আমাৰ হ'ব what constant okay constant returns to what scale means CRS clear তো CRS কনসেপ্টটো বুজিবৰ কাৰণে say মই লিখি লৈছো say output is a function of labor and capital clear in that situation যদি দুইটা factor lambda time change হয় means L lambda times capital also lambda times okay in that situation output also changes lambda times clear in that situation this concept is said to be CRS okay তেতিয়ালে mathematically বস্তুটো এটো factor দুইটা lambda times output lambda time means in that situation तुम देखो labor lambda time change हुआ capital भी lambda time change हुआ तब जाके तुमको आउटपुट भी मिला कितना lambda times इंक्रीमेंट क्लियर फैक्टर lambda times आउटपुट lambda इसका मतलब फैक्टर सेम रेट आउटपुट सेम रेट अगर फैक्टर सेम रेट चेंज हुआ तो लॉन्ग रन हो गया अगर फैक्टर सेम रेट चेंज हुआ तो आउटपुट भी सेम रेट चेंज हुआ तो CRS कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर तो इन दैट सिचुएशन अगर तुम ये चीज़ थोड़ा डिटेल्स में देखो डायग्रामेटिकली एंड टेबुलेटेड फॉर्म तो ये चीज़ आएगा मैं इतना ओमिट कर देता हूँ तो ऊपर मेरा जगह मिल जाएगा क्लियर तो इन दैट सिचुएशन में बोलना चाहता हूँ ये वाला कॉन्सेप्ट ना मुझे चाहिए क्या CRS कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल अगर कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल चाहिए तो प्रोडक्शन इज ए फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल क्लियर से L and K both increases lambda what both increases lambda times then क्या होगा अगर दोनों फैक्टर lambda टाइम चेंज हुआ मतलब L lambda टाइम्स कैपिटल भी lambda टाइम्स क्लियर तो तुम्हारा जो आउटपुट होगा वो भी lambda टाइम से इंक्रीमेंट होगा L lambda टाइम चेंज हुआ कैपिटल भी lambda टाइम चेंज हुआ तो फाइनली आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस बाय lambda टाइम्स अगर ये सिचुएशन आएगा दिस इज सेड टू बी CRS क्लियर तो ये हो गया CRS वाला कॉन्सेप्ट अब ये चीज़ अगर टेबल में तुम देखो ना तो ये मैंने आउटपुट लिख दिया ये मैंने टोटल प्रोडक्ट लिख दिया आउटपुट बाद में आएगा इधर फैक्टर्स आ जाएगा क्लियर फैक्टर्स में 2 लिख दो तो इजी होगा समझने के लिए क्लियर फैक्टर लेबर कैपिटल देन टोटल प्रोडक्ट देन मार्जिनल प्रोडक्ट क्लियर ये वाला सिचुएशन ले लो मान लो लेबर 1 कैपिटल 1 आउटपुट 10 लेबर 2 कैपिटल 2 आउटपुट 20 लेबर 3 कैपिटल 3 आउटपुट 30 इसका मतलब ये हुआ लेबर 1 यूनिट करके इंक्रीज हुआ तो कैपिटल भी 1 यूनिट करके इंक्रीज हुआ ये जो दोनों फैक्टर का इंक्रीमेंट हुआ ना दिस इज सेम रेट में इंक्रीमेंट हुआ और दोनों चेंज हुआ लेबर भी चेंज हुआ कैपिटल भी चेंज हुआ इसलिए दोनों को हम लोग वेरिएबल फैक्टर बोलता है लॉन्ग रन में तो मार्जिनल प्रोडक्ट तुमको मिल जाएगा कितना पहला वाला चेंज नहीं है तो 10 ही लिख दो डैश लिखना चाहिए इसे 10 लिख दो इसका डिफरेंस 20 माइनस 10 लिख दो 30 माइनस 20 10 लिख दो क्लियर इन दैट सिचुएशन तुमको एक कॉन्सेप्ट मिला क्या मिला जब दोनों फैक्टर सेम रेट में चेंज होता है ना तो आउटपुट भी सेम रेट में चेंज होता है मतलब दोनों फैक्टर लैम्डा टाइम चेंज हुआ तो आउटपुट लैम्डा टाइम्स भी चेंज हुआ क्लियर तो इसका डिग्री 1 आ जाएगा क्लियर तो ये वाला सिचुएशन अगर तुम डायग्रामेटिकली दिखाओ ना तो ये चीज़ होगा इधर तुम्हारा एमपी वाला कंसेप्ट लिख दो इधर तुम फैक्टर्स लिख दो फैक्टर्स का मतलब दोनों फैक्टर्स क्लियर तो इन दैट सिचुएशन एमपी रिमेन्स कांस्टेंट तो एमपी कैप सीधा चला जाएगा दिस इज एमपी सो दिस कैप रिप्रेजेंट व्हाट
CRS. मतलब if CRS prevails then MP remains what? कांस्टेंट. मतलब MP हर पॉइंट में 10 ही होगा. क्लियर. और इन दैट सिचुएशन MP का पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा. क्लियर. तो CRS कॉन्सेप्ट में तुमको लॉन्ग रन में ये चीज़ मिला, दोनों फैक्टर अगर सेम रेट में चेंज होगा तो आउटपुट भी सेम रेट में चेंज होगा. अगर आउटपुट सेम रेट में चेंज होगा तो MP रिमेन्स व्हाट? कांस्टेंट. इफ MP रिमेन्स कांस्टेंट देन MP का पैरेलल टू एक्स एक्सिस. क्लियर. सो दिस MP का रिप्रेजेंट CRS हो गया. ये हो गया पहला वाला कॉन्सेप्ट. सेकेंड वाला कॉन्सेप्ट होगा, मान लो ये मैं ओमिट कर देता हूँ. मान लो दोनों फैक्टर लैम्डा टाइम चेंज हुआ लेकिन आउटपुट ज़्यादा रेट में चेंज हुआ. क्लियर. मतलब बोथ फैक्टर इंक्रीजेस बाय लैम्डा टाइम्स, आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन लैम्डा टाइम्स. मतलब फैक्टर जिस हिसाब से बढ़ा आउटपुट उससे ज़्यादा बढ़ा. क्लियर. तो अगर ये चीज़ होगा तो TP बढ़ेगा. जैसे मान लो TP 10, उसके बाद लिख दिया मान लो 30, उसके बाद लिख दिया मान लो 60. क्लियर. इन दैट सिचुएशन क्या होगा, ये 30 डिफरेंस 20 आएगा, 60 डिफरेंस 30 आएगा. तो इसमें तुमको ये मिला, दोनों फैक्टर सेम रेट में चेंज हुआ लेकिन टोटल आउटपुट ज़्यादा बढ़ा तो MP इंक्रीमेंट होगा. क्लियर. और अगर MP इंक्रीमेंट होगा तो डेफिनेटली MP का व्हाट? स्लोप्स अपवर्ड्स. क्लियर. स्लोप्स अपवर्ड्स होगा तो दिस कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट IRS. ये देखो MP धीरे धीरे बढ़ते गया, जैसे फैक्टर बढ़ते गया ना उस हिसाब से MP भी बढ़ते गया. क्लियर. सो MP इंक्रीजेस. सो इन दैट सिचुएशन MP का स्लोप्स अपवर्ड. सो MP का स्लोप अपवर्ड्स नथिंग बट IRS होगा. क्लियर. सो IRS कॉन्सेप्ट में ओवरऑल तुमको क्या मिला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में फैक्टर दोनों होगा लैम्डा टाइम्स इंक्रीमेंट होगा तो आउटपुट लैम्डा टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा. क्लियर. अगर ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा तो देन दैट सिचुएशन इज सेड टू बी इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्रमवर्धमान मात्रा प्रतिदान. क्लियर. तो IRS कॉन्सेप्ट में कॉन्सेप्ट ये मिला, दोनों फैक्टर सेम रेट में इंक्रीमेंट हुआ, आउटपुट ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ. क्लियर. तो फाइनली लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो ना होगा ना वो होगा DRS. क्या होगा? DRS. तो DRS कॉन्सेप्ट में क्या होगा, फैक्टर दोनों सेम रेट में ही चेंज होगा लेकिन इधर आउटपुट मान लो 0.3 लिख दिया. मतलब आउटपुट लेस देन 1 इंक्रीमेंट हुआ लेकिन लेस देन 1. मतलब फैक्टर दोनों इंक्रीमेंट हुआ लैम्डा टाइम्स, आउटपुट का इंक्रीमेंट हुआ लेस देन लैम्डा टाइम्स. क्लियर. तो लेस देन लैम्डा टाइम्स मैंने बोला. क्लियर. तो इधर क्या होगा 10, इधर मैंने 30 लिख दिया, इधर मैंने 40 लिख दिया. ठीक है ना. तो 40 अगर लिख दिया इधर डैश आ जाएगा, 30 माइनस 10 20 होगा, 40 माइनस 30 10 होगा. मतलब इसका मतलब ये होगा दोनों फैक्टर इंक्रीज हुआ सेम रेट में, टोटल आउटपुट भी इंक्रीज हुआ लेकिन MP डिक्रीज हुआ. क्लियर. मतलब इसका मतलब ये होगा MP का डेफिनेटली स्लोप्स व्हाट? डाउनवर्ड्स. मतलब MP का नीचे जाएगा. क्लियर. क्योंकि MP फॉल्स हुआ तो MP नीचे जाएगा. तो MP इतना है पहले, बाद में इतना हो गया जब फैक्टर बढ़ गया. क्लियर. x1 x2 मान लो फैक्टर. क्लियर. तो दोनों फैक्टर का MP नीचे आते गया, फॉल्स होते गया. दिस सिचुएशन रिप्रेजेंट व्हाट? DRS. क्लियर. तो फाइनली तुमको 3 कॉन्सेप्ट मिला अंडर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. फर्स्ट वन CRS जिसको लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन भी बोलता है. क्लियर. और IRS लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन मतलब CRS, लेकिन IRS मतलब नॉन लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन डिग्री ग्रेटर देन 1 एंड DRS नथिंग बट नॉन लीनियर होमोजेनस प्रोडक्शन फंक्शन डिग्री लेस देन 1. क्लियर. तो तीनों कॉन्सेप्ट में तुमको ये चीज़ मिला, CRS में फैक्टर चेंजेस सेम रेट, IRS में फैक्टर चेंजेस सेम रेट, DRS में फैक्टर ऑल्सो इंक्रीजेस सेम रेट. लेकिन CRS में आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस सेम रेट, IRS में आउटपुट इंक्रीजेस मोर देन दैट रेट, DRS में आउटपुट इंक्रीजेस लेस देन दैट रेट. क्लियर. CRS में MP रिमेन्स कांस्टेंट, IRS में MP इंक्रीजेस, DRS में MP फॉल्स. क्लियर हो गया. दिस इज द 3 कॉन्सेप्ट अंडर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन. क्लियर. अभी लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में अगर तुमको ये 3 कॉन्सेप्ट ओवरऑल मिल गया, इसका मतलब ये हुआ, मैं ब्रीफ लिख दूँ, समारी कॉन्सेप्ट लिख दूँ. समारी तुमको ये मिला, अगर
फैक्टर दोनों लैम्डा टाइम चेंज हुआ, क्लियर, लैम्डा टाइम चेंज हुआ, क्लियर, तो आउटपुट भी लैम्डा टाइम चेंज हुआ, क्लियर। इन दैट सिचुएशन व्हाट एमपी remains what, MP remains constant and finally क्या मिला तुमको, CRS, क्लियर, ये वाला कॉन्सेप्ट मिला। लेकिन ये फर्स्ट वाला, सेकंड तुमको मिला फैक्टर अगर लैम्डा टाइम चेंज हुआ, लेकिन आउटपुट मोर देन लैम्डा टाइम चेंज हुआ, क्लियर। इन दैट सिचुएशन एमपी व्हाट, एमपी इंक्रीजेस और ये सिचुएशन हो जाएगा IRS, क्लियर। थर्ड कॉन्सेप्ट तुमको मिला फैक्टर इंक्रीजेस लैम्डा टाइम्स, output increases less than lambda times, okay, this concept nothing but MP what, MP decreases, और MP डिक्रीज होगा तो कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू DRS, ओके। तो फाइनली तीन कॉन्सेप्ट तुमको मिला अंडर लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, मतलब दोनों फैक्टर सेम रेट में इंक्रीमेंट हुआ लैम्डा टाइम्स, आउटपुट ऑल्सो इंक्रीजेस लैम्डा टाइम्स, दिस इज CRS where MP remains constant. Factor increases lambda times, output increases more than lambda times, MP increases IRS. Factor increases lambda times, output increases less than lambda times, 0.3 लिखा मैंने, ओके। MP डिक्रीज होगा तो दिस कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू DRS, ओके। फाइनली तीनों कॉन्सेप्ट में बोथ फैक्टर इंक्रीजेस एट द लैम्डा टाइम्स, मतलब सेम रेट में, लेकिन आउटपुट सेम रेट भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर फैक्टर के हिसाब से आउटपुट बढ़ा तो CRS, फैक्टर जिस हिसाब से बढ़ा आउटपुट ज़्यादा बढ़ा तो IRS, फैक्टर जिस हिसाब से बढ़ा आउटपुट मान लो उससे कम बढ़ा, इंक्रीमेंट कम हुआ, दिस इज सेड टू बी DRS, क्लियर। ओवरऑल ये जो लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में तुमको तीन कॉन्सेप्ट मिला ना, CRS, IRS, DRS, क्लियर। तीनों में किंतु टोटल प्रोडक्शन किंतु बढ़ने वाला रेट अगर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तीनों में टोटल प्रोडक्शन इंक्रीमेंट हुआ, क्लियर। लेकिन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में तुमको किंतु स्टेज 3 में निगेटिव रिटर्न्स मिलता है, मतलब टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज होता है, क्लियर। सो फाइनली शॉर्ट रन में तुमको तीन स्टेज में तीन रिटर्न मिला, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, फाइनली निगेटिव रिटर्न्स टू ए फैक्टर व्हेयर टोटल प्रोडक्ट डिक्रीजेस, क्लियर। बट लॉन्ग रन में तुमको तीन कॉन्सेप्ट मिला, CRS, IRS, DRS, तीनों में किंतु टोटल प्रोडक्शन बढ़ता है, मतलब निगेटिव रिटर्न्स लॉन्ग रन में नहीं होता है, क्लियर। सो दैट्स ऑल, फाइनली दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, जो मैंने समझाया लास्ट क्लास में। अभी मैंने आज जो समझा लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन कॉन्सेप्ट अंडर दैट CRS, IRS, DRS, ओके, थैंक यू।